Namaste. I welcome you all to this session on which is, by the way, has a nomenclature of art and science of translation. But what we're essentially going to do is talk to a translator couple, literally, who have languages flowing through their drawing rooms, kitchens, other rooms of the houses, and have contributed so much to Hindi, to English, from Indian languages, and of course from international ones, as you just heard in the introduction presented by our team. This is also a moment of gratitude for the Jaipur Literature Festival, because as you heard, Prabhat ji won the Yuva Puraskar for Kotha Goi. And imagine he's getting the Distinguished Translator Award, which is actually for the over of lifetime of work. So you see the journey. It's my 15th year at Jaipur Literature Festival, 10th year of the award. Imagine how much we've learned so far and how this journey has unfolded so beautifully. Thank you for being a part of it. We'll start this beautiful little conversation. Rohini ji will start with you. Let's try to know the process of understanding the translation from an international idiom to our very Hindi heartland's sensibility, especially when it comes to Korean and Japanese language. And of course, when you have a ace editor at home, how does the copy flow through? Thank you so much, Aditi. Thank you so much, JLF and Namita ma'am and Sanjay sir for giving me this opportunity to work. When it comes to translation, to be very frank and honest, translation was one of the boring tasks and courses when I was doing the language. Like I have done my graduation from graduation and then masters and PhD till PhD in Korean language and literature. So of course, when we were learning language as a toddler, because when we came in BA, it was like from start from scratch. So translation, of course, became part of life because when it comes to classrooms, we were, told that you have to speak in Korean because in order to make you yourself fluent. So that's how translation came into my life. And then I'm a Hindi native speaker, so Hindi itself was there. Somehow it was there because my house is full of books, and when I was in 8th, I used to remember 100+ authors' names with their titles. So that was what the sanskar, you can say that. So when it comes to translation, when you are saying that when we translate across the languages, it happens because yesterday also I mentioned this as a student of translation and a language. What I feel that languages do not align with themselves. Like people, they do not align with themselves easily. So of course, being a translator is a very tough job at a time because then you have language nuances, then you have language ki seemaएं अपनी and idioms and phrases. So it makes tough. And then when you have a person as an editor all along with you 24 hours, it makes you more like it makes more challenging for you to even write or utter a single word. प्रभात जी, गेंद अब आपके पाले में है, क्योंकि जब हम कुछ आपके पुराने वीडियोस देख रहे थे, जब आपने पुष्पेश जी की पुस्तक का अनुवाद किया, नमिता जी की पुस्तक का किया, और भी कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कवियों का आपने अनुवाद किया था, तो आप कई मसालदानियों की तरह शब्दों को, जैसे मसालदानियों में हम मसाले ढूंढते हैं, वैसे आप शब्दों को ढूंढते हुए पाए गए थे। और सलमान रश्दी जी के किताबों के बारे में भी आपने एक बड़ी परिचर्चा की थी। तो ये मसालदानियाँ क्या किस तरह से आप लोग खोलते हैं और उसमें से कैसे सुगंधें निकलती हैं? मुझे तो ये याद मसालदानी मुझे मेरे उस्ताद थे मनोहर श्याम जोशी, वो खुद बहुत अच्छे अनुवादक थे 50s 60s में। उन्होंने रघुवीर सहाय ने भारत के बड़े बड़े दस्तावेज़ों का अनुवाद किया था भारत सरकार के, और साइमल्टेनियस ट्रांसलेटर थे, इंटरप्रेटर थे। वो मुझे हमेशा एक बात सिखाते थे कि देखो, अनुवाद
ज़रूर करना शुरू कर दो, क्योंकि अनुवाद तुम्हें तुम्हारे गाढ़े वक्त में काम आएगी। ये तुम्हें आर्थिक रूप से भी आज़ाद करे, इससे भी लाभ होगा, और तुम अपनी भाषा में दूसरी भाषा की सामग्री को, रचनाओं को ला पाओगे। लेकिन मैं बहुत रिलक्टेंट था, क्योंकि अनुवाद करना बैठना बहुत पेशेंस का काम होता है। फिर उन्होंने मुझे 2 चीज़ें सिखाई थी जो मैं यहाँ बताना चाहूँ। उन्होंने कहा था कि देखो, जीवन में अगर लेखक कुछ भी करना, अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन के लिए 2 में से कोई एक चीज़ कर सकते हो। पहली चीज़ ये है कि रोज़ सुबह उठ के ये नियम बनाओ कि पूजा पाठ करोगे, फिर दिन का काम शुरू करोगे। इससे क्या होगा कि तुम सुबह अपने आप तैयार हो जाओगे, पूजा पाठ करो, ये अनुशासन का हिस्सा है। अगर ये नहीं कर सकते हो, दूसरा ये है कि रोज़ सुबह उठ के अनुवाद करना शुरू करो, और अनुवाद करने लगोगे, धीरे धीरे अनुशासन आने लगेगा तुम्हारे। तो मैंने दूसरा चुना, क्योंकि पहला वाला थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था। मैंने कहा दूसरा वाला ठीक है। लेकिन उनके उन दिनों बहुत अच्छे मित्र थे, अरुण माहेश्वरी जी। तो वो दोनों मिलके, चूँकि वो मेरे गुरु अभिभावक सब थे, मनोहर श्याम जी, तो दोनों मिलके मेरे करियर के बारे में सोचते रहते। तो मैं अक्सर, जैसा कि विद्रोही बच्चा होता, उनके बनाए रास्तों को विद्रोह करता था। लेकिन एक दिन उन्होंने, अरुण माहेश्वरी ने, 2000 की बात है, 25 साल हो गए इस बात के, उन्होंने मुझे एक किताब दी, श्रीनगर कॉन्स्पिरेसी, जो विक्रम ए चंद्रा उन दिनों NDTV में थे। उन्होंने कश्मीर के ऊपर वो किताब लिखी। तो उन्होंने कहा कि इसका आप अनुवाद करेंगे, और ये आपके गुरु ने कहा है। तो मैंने वो अनुवाद शुरू किया, और उसके बाद मुझे ये बात बहुत ज़्यादा समझ में आने लगी। वो अनुवाद बहुत, आज भी वो किताब प्रिंट में है, 25 साल बाद भी ये बात मुझे समझ में आने लगी कि मेरी जो भाषा है, यानी जिस भाषा भाषी क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, हिंदी प्रदेशों में सबसे ज़्यादा एक भाषा के लोग, हिंदी पट्टी में आप देखेंगे कि हिंदी और अपनी बोलियों को छोड़ के अंग्रेजी या किसी दूसरी भारतीय भाषाएं भी लोग कम जानते हैं। वो चाहते हैं कि वो हर चीज़ अपनी भाषा में पढ़ें, हर रचना, हर पुस्तक अपनी भाषा में पढ़ें। और अलग अलग रूपों में मैं जुड़ा रहा। तो मैं उसी मसालदानी से मैं ये कोशिश करता रहा कि अधिक से अधिक सामग्री अपनी पट्टी में, अपने क्षेत्र में, अपनी भाषा में पहुंचा पाऊँ, जिससे कि लोगों में पढ़ने की संस्कृति बने रहे, लोग खूब पढ़ें, लोगों को अच्छी अच्छी किताबें मिलते रहें। और ये एक पैशन था जो पिछले 25 सालों से मुझे जिसने बनाए रखा। यही वो मसाला था, यही वो मसालदानी थी। पर 25 सालों में पीढ़ियां बदल गईं, और पीढ़ियों के भाषाई स्वभाव को समझने की तरकीब बदल गई। तो ऐसे में जो हम आज की पीढ़ी समझते हैं, जिन्हें, जो मुझे अभी, क्योंकि हम नई दिल्ली पुस्तक मेले से आ रहे हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि देश बहुत पढ़ रहा है। ये कहना गलत होगा कि जेनजी कम पढ़ रही है। वो ऐसी किताबें जो बैकलिस्ट में लुप्त हो गई थी, आउट ऑफ प्रिंट थी, वो भी हमें रीप्रिंट करनी पड़ रही है, क्योंकि मांग है उन किताबों की। तो ऐसी पीढ़ी जो कि पढ़ रही है, उस पीढ़ी के लिए नया अगर मसौदा तैयार करना है, तो रोहिणी जी आपसे शुरू करती हूँ। ये किस तरह से भाषा बदल रही है अनुवाद की, और इसमें AI कहाँ है बीच में? जब हम अनुवाद की बात करते हैं तो एक कॉमन परसेप्शन जो होता है, जब मैं भी अनुवाद नहीं करती थी या भाषाओं के साथ मेरा खेलना कूदना उठना बैठना नहीं होता था, तो कि हम सोचते हैं कि मैंने अभी बोला, हम सोचते हैं और सामने वाला बोल देगा कि वी थॉट और वी थिंक। लेकिन ये एक बारीक फ़र्क है मेरे देखे में कि ये इंटरप्रिटेशन है, ये ट्रांसलेशन नहीं है। ट्रांसलेशन में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपका रीडर कौन है, आपका क्लाइंट कौन है। क्लाइंट मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी आपने AI को संदर्भित किया है। तो जब अनुवाद पे बात करते हैं और भाषाओं के आवाजाही की बात करेंगे, तो अब हम भी जानते हैं कि विशुद्ध क्लिष्ट हिंदी अगर मैं लिखूंगी तो शायद हम नई जेन जी जिसको हम कहते हैं वो तो पढ़ भी ले, क्योंकि हो सकता है वो भाषा सीखना चाहे, लेकिन यहाँ दर्शक दीर्घा में बैठे लोग कहेंगे ये क्या कर दिया। ये इसकी संभावना बहुत है। और मैं यहाँ बस एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगी कि मैं सिर्फ फिक्शन अनुवाद नहीं करती हूँ, मैं लेखों का भी अनुवाद करती हूँ। मैं जिसको मशीन ट्रांसलेशन पोस्ट एडिटिंग कहते हैं, मैं वो काम भी थोड़ा बहुत कोरियन से इंग्लिश और हिंदी और वाइस वर्सा करती हूँ। और जो सोशल सेक्टर में लेख लिखे जाते हैं उनके भी ट्रांसलेशन और एडिटिंग का थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है। तो जब आप मसालेदानी, जिस शब्दों की मसालेदानी की बात कर रही हैं, वो डिपेंड करता है कि आप टारगेट किसको कर रहे हैं। जैसे अगर मैं फ़िक्शन का अनुवाद करूं, अभी अगर ऑर्बिटल की बात करें या प्रभात जी जो काम करते हैं फ़िक्शन, ज़्यादातर फ़िक्शन करते हैं, तो उसमें हमारे पास रचनात्मक स्वतंत्रता एक हद तक होती है, वहाँ हम खेल सकते हैं।
लेकिन वहाँ भी वो स्वतंत्रता चुनौती के साथ आती है। जैसे अगर ईडियम्स की बात करें, हिंदी में अंग्रेज़ी लिखता है कि यू आर गोइंग, और जब आप उसको हिंदी में करते हैं तो हिंदी आपसे पूछती है तुम जा रहे हो, तू जा रहा है, आप जा रहे हैं या आप लोग जा रहे हैं। तो अनुवाद सिर्फ ट्रांसलेशन जिसको हम कहते हैं, अनुवाद सिर्फ अनुवाद नहीं है। अनुवाद क्या है? वो डिसीजन मेकिंग है, और वो डिसीजन मेकिंग विथ नॉट ओनली विथ एवरी वर्ड बट विथ एवरी कैरेक्टर। और कॉन्टेक्स्ट तो है, लेकिन मैं कह रही हूँ शब्दों के बीच भी है। आप अगला शब्द क्या लिखेंगे वो आप बैक इन द माइंड, आपका वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है और ये इतना आसान भी नहीं है। बढ़िया। प्रभात जी। मैं बस संक्षेप में एआई के बारे में बोलना चाहता हूँ। एआई को हम लोगों ने ऐसे समझ लिया है, अनुवादक के तौर पर मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे एआई के थ्रू अनुवाद करना कोई अच्छा हम चोरी का काम कर रहे हैं। एआई असिस्टेंस कहते हैं ना, जेमिनी एआई असिस्टेंट है, या हमारा इसमें सीरी एआई असिस्टेंट है। तो असिस्टेंट है हमारा, हम जितनी अच्छी तरह कमांड देंगे उतनी अच्छी तरह वो काम करेगा, और हमारी भाषा की पकड़ जितनी अच्छी होगी उसकी भाषा उतनी अच्छी होती जाएगी। वो हमारी जगह नहीं है, हमारी मदद के लिए। और एआई के माध्यम से मेरा तो ये मानना है, और ये मैं खुलेआम कहता हूँ कि लोगों को एआई के माध्यम से अनुवाद करना चाहिए, क्योंकि लेकिन पूरी तरह से नहीं करना चाहिए। उस अपनी भाषा की समझ के साथ उसका उपयोग करना चाहिए। उससे भाषा की एक रूपता बनी रहती है, भाषा में उतार चढ़ाव नहीं आता। एक तरह की भाषा लिख सकते हैं, लेकिन एआई भी धीरे धीरे उन्नत होता जा रहा है। पहले वो ऐसा नहीं करता था। अब तो मैंने ये देखा है कि कविताएं इतनी अच्छी एआई अनुवाद कर देता है, मुझे लगता है अच्छे अच्छे अनुवादकों की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर मैंने वही कहा कि कमांड चाहिए। अगर आपके पास अपनी भाषा की समझ कम है तो आप एआई आपकी वैसी मदद नहीं कर पाएगा। बॉस जितना अच्छा होता है उसके असिस्टेंट्स उतना अच्छा काम करते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा बस जोड़ना चाहूँगी कि प्रभात जी ने कहा कि एआई असिस्टेंट होता है। मुझे लगता है एआई वो बच्चा होता है जिसको हम जो सिखाएंगे वो वही सीखेगा। तो वो उस मतलब हम अभी एआई के लिए गार्जियन हैं। और चूंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि एआई जो है वो एआई पे जो आप फाइनल देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आता है, उसके जस्ट पहले का जो बिफोर हैंड प्रोसेस होता है वो मशीन ट्रांसलेशन पोस्ट एडिटिंग होता है। तो वो एडिटिंग कौन कर रहा है? वो एडिटिंग प्रकाशक करवा रहे हैं, वो एडिटिंग मीडिया हाउसेस करवा रही है, वो एडिटिंग गूगल और जेमिनाई करवा रहा है। और वो किन से करवा रहा है? वो हम जैसे अनुवादकों से करवा रहा है। तो यहाँ भी अनुवादक का ही रोल है जिसका काम आपको स्क्रीन पे डिजिटल फॉर्म में मिल रहा है। तो ये थ्रेट नहीं है, मुझे लगता है कि ये एक मौका है जो हम अनुवादकों को चैलेंज पार करके, ओवरकम करके ये बता रहा है कि हम अपना फाइनल काम जो देखेंगे वो देख के खुश होंगे। क्योंकि किताब करने के बाद शायद ही हम पढ़ते हैं अपना काम। शायद ये बड़ा पड़ाव है कि हम दो अनुवादकों से बात कर रहे हैं जिन्होंने विविध विधाओं में अनुवाद किए हैं, और वो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग में ले आना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये है कि एआई से हम जल्दी तो किताब ले आएंगे, क्योंकि जो पहले के 3-4 महीने का प्रोसेस है पहला ड्राफ्ट तैयार करने का, वो आप जल्दी पार कर लेते हैं, और उसके बाद संपादन का काम शुरू होता है, कॉपी एडिटिंग का काम शुरू होता है। लेकिन ग्लोबल रिपोर्ट्स जो भारत की रीडरशिप के बारे में कहती है वो ये कि हम 6% के रीडर्स हैं। मतलब हर साल 6% लोग ही नई किताबें पकड़ रहे हैं। यही नॉर्वे में 70% है और स्वीडन में 68% है। तो ऐसे में जब क्या हम एक ऐसी इंडस्ट्री की परिकल्पना कर रहे हैं आने वाले समय में जो ऑलरेडी ओवर प्रोड्यूस कर रही है और अंडर कंज्यूम कर रही है, और जब इतनी सारी किताबें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रोड्यूस हो जाएंगी, भारतीय भाषाओं में अनुदित होकर आ जाएंगी, तो क्या रीडरशिप में इजाफा होने के चांसेस दिख रहे हैं आपको, या ये एक और बड़ा सैलाब बन जाएगा ओवर प्रोडक्शन का? लीडरशिप में तो लगातार इजाफा होता जाएगा ना। आपने आंकड़े दिए, बहुत अच्छे आंकड़े दिए, लेकिन ये आंकड़ा भी आपकी नज़र में होगा कि हिंदी पट्टी जो है, जो हिंदी का विराट वर्ग जो है, अभी भी सबसे ज़्यादा निरक्षरता, साक्षरता दर अभी भी सबसे कम हिंदी पट्टी में है। तो वो जो लोग साक्षर होते जा रहे हैं, नव साक्षर जो लोग हो रहे हैं, न्यू लिटरेट हो रहे हैं, उनका पहला आकर्षण अखबार और किताबों की तरफ होता है। तो रीडरशिप निश्चित रूप से बढ़ रही है। मैं
स्वयं मैंने JLF के क्रॉसवर्ड बुक स्टोर में जाकर देखा कि हिंदी के में अनुदित किताबें बड़ी तादाद में लोग खरीद रहे हैं, बड़ी, या तो गुनाहों का देवता जैसे उपन्यास खरीद रहे हैं या फिर ट्रांसलेशन खरीद रहे हैं। तो ये रीडरशिप बढ़ेगी और AI के माध्यम से अनुवाद जल्दी नहीं होता। अगर आप AI के माध्यम से अनुवाद जल्दी करेंगे तो फिर वही समस्या होगी कि अनुवाद अच्छा नहीं होगा। समय लगाकर उसके साथ काम करने से बेहतर रिजल्ट आएंगे और अच्छी तरह से किताबें आएंगी जिसमें दोष कम से कम, सांस्कृतिक संदर्भ जी हम हाँ, पाठकों जी, तक पहुंचा जी। पाएंगे। रोहिणी जी, क्लोज, वी कैन गेट द क्लोजिंग रिमार्क्स फॉर दिस डिस्कशन फ्रॉम एक यू। जो नॉर्मल बात है जो हम आए दिन डिस्कशन में लाते हैं और डिस्कोर्स का हिस्सा होता है कि टेक्नोलॉजी से हम सबसे पहला जो हमारा ह्यूमन रिएक्शन होता है वो ये होता है कि हम डर जाएंगे। जब कंप्यूटर शायद आया था उस समय भी हम डर रहे थे। इंटरनेट आया तो हमें डर हुआ कि हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे और हम बिगड़ जाएंगे। स्मार्टफोन आया तो वो डर एक लेवल और बढ़ गया, लेकिन हम सब ओवरकम कर रहे हैं। AI डर नहीं है, या AI जैसे तमाम जो टेक्नोलॉजी बेस्ड आपको इक्विप्ड कर रहे हैं। और फिर मैं यहाँ विनोद कुमार शुक्ल को कोट करना चाहूँगी, जो उन्होंने शायद अपने जाने से जस्ट पहले, थोड़े दिन पहले कहा था कि मशीन कुछ भी करेगी, अगर हम सब लेखक हैं, लेखन की बात सिर्फ करूं तो वो डुप्लीकेट होगा। ओरिजिनल ऑर्गेनिक इंसान ही लिखेगा। तो वो उम्मीद दे के गए हैं, देखते हैं सब शायद कुछ होना बचा सब कुछ होना बचा रहेगा जी। तो बहुत शायद सुंदर, बहुत सुंदर। अब जिस क्षण के लिए हम सब जुड़े हैं उसकी हम आरंभ करें। मेरा अनुरोध है कि वाणी फाउंडेशन डिस्टिंग्विश्ड ट्रांसलेटर अवार्ड की 10 वर्षों की यात्रा हम सबके समक्ष रखें। हमारे बीच तेजी ग्रोवर जी हैं यहाँ, जो पिछले वर्षों में पुरस्कार से सम्मानित हुई। नमस्ते तेजी जी, आपका बहुत स्वागत है। And with this, I request Shri Sanjoy Roy, Namita Gokhale ji and Yatindra Mishra ji to please join us on stage to begin the award ceremony. A huge round of applause for Prabhat Ranjan ji for the 10th Vani Foundation Distinguished Translator Award. Meenakshi. Yes. It's my privilege to introduce to you the guests who have joined us on the stage for this award ceremony. Yatindra Mishra is a distinguished poet, author, music and cinema scholar. He has authored 5 poetry collections along with acclaimed works on Thumri singer Girija Devi, dancers Sonal Mansingh, Shehnai Mastro, Bismillah Khan, authorized biography of playback singer Lata Mangeshkar and filmmaker Gulzar. Welcome Yatindra ji. We have also on stage Namita Gokhale, co-founder and co-director of the Vedanta Presents Jaipur Literature Festival. Welcome. And of course Sanjay Roy, managing director of Teamwork Arts. Thank you. Over to you, Aditi, for the ceremony. I request our jury, Shri Yatindra Mishra ji, to please say a few words for the awardee and his journey with the award. प्रभात रंजन जी को इस रूप में देखना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, इसलिए कि
समय का पहिया है, कैसे हम दोनों के फेवर में घूमा है कि ये मेरे एडिटर रहे हैं और मैं इनका जूरी मेंबर रहा हूँ अवार्ड का। और प्रभात जी का जो लेखन है, जैसा मैंने कल भी कहा कि संग्राम के लॉन्च पे और आज भी जब उन्हें एक अनुवादक के तौर पर पुरस्कृत किया जा रहा है, उनके अनुवाद में और उनकी रचनाधर्मिता में एक सिनेमेटोग्राफिक विज़न है जो वो अपने गुरु मनोहर श्याम जोशी जी से और असगर वजाहत जी के साथ लेकर के आते हैं। उसमें विट है, उसमें एक अलग किस्म की आपाधापी है और मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो वो अनुवाद में भी संभव करते हैं। मैं एक खास किताब का जिक्र करूंगा, जेरी पिंटो की मर्डर इन माहिम, जिसको लेकर के उन्होंने उस अनुवाद को इतना सुंदर बनाया कि अंग्रेज़ी का आस्वाद हिंदी में बिल्कुल भिन्न तरीके से दिखता है, लगता है जैसे किताब हिंदी में लिखी गई हो। प्रभात रंजन एक कुशल संपादक, एक बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व के लेखक और एक बहुत धीर अनुवादक हैं जिन्होंने अपने अनुवाद में बहुत ही जिसे कहते हैं कि बहुत संशय के साथ पुस्तकों का चुनाव किया है। जब हम हिंदी अनुवाद की श्रृंखला में बहुत सारे अनुवादकों को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तमाम सारे पॉपुलर जॉनर्स की किताबें जो आज हिट होती हैं या जिनको बेस्ट सेलर किताबें माना जाता है, फटाफट अनुवाद करते रहते हैं। प्रभात रंजन वहाँ पे विलंबित गति में बढ़ते हैं और ठहरते हैं, और जब उसकी शोहरत का पानी उतर जाता है तब वो फिर उस किताब को उठाते हैं, उस राख में से अंगारा निकालते हैं और फिर उस किताब की एक नई पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। उनके ट्रांसलेशन में ये बहुत गरिमापूर्ण ढंग से देखा जा सकता है। अनुवादक को और उस पुस्तक की यात्रा को कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, बल्कि वो धीमी धीमी आंच पर पकता है और अपना असर कायम रखता है। मैं बहुत सम्मानित महसूस करता हूँ कि वाणी डिस्टिंग्विश ट्रांसलेटर अवार्ड की जूरी में पिछले 3 वर्षों से हूँ। ऑस्कर पुजौल और शांता गोखले जी और अब प्रभात रंजन जी को ये अवार्ड मिल रहा है। मेरे साथ नमिता जी और अरुणावा जी हैं और सामने संजय रॉय जी। आपका बहुत आभार। मुझे और वाणी ट्रांसलेटर वाणी फाउंडेशन को बहुत बधाई, प्रभात जी को बहुत बधाई कि वो एक अनुवादक के रूप में अभी यहाँ पुरस्कृत हो रहे हैं। जल्दी हम उन्हें साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार को जीतता हुआ देखें। बहुत बधाई। धीरे धीरे चलना और धीरे धीरे पकना, इस आपाधापी की दुनिया में धीरे हो जाना ही शायद जीवन को बचाना है। मेरा अगला आमंत्रण है उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने इस पुरस्कार की कल्पना 11 वर्ष पहले की और इसकी स्थापना 10 वर्ष पहले उन्होंने अपने हाथों से रखी, और आज जब हम इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं तो उनके 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में हमें मिलेंगे। आदरणीय नमिता गोखले जी। तो मैं अंग्रेज़ी में कुछ शब्द कहूँगी। कैन यू हियर मी? तो राइटर्स आर द फ्रंट पेज ऑफ बुक्स, मगर अनसंग हीरोज़, द लिटरेरी बैक स्टेज बिलोंग्स टू ट्रांसलेटर्स। वो शब्द की खुशबू फैलाते हैं, उसकी जो द सीड्स, वो उसकी रूट्स को वो नरिश करते हैं। और हमारे जो प्रभात रंजन जी हैं वो लेखक भी हैं, बहुत अकम्प्लिश्ड लेखक हैं, जर्नलिस्ट मतलब ब्लॉगर ये वो भी हैं, और बहुत अच्छे ट्रांसलेटर हैं। उनके ट्रांसलेशन, उन्होंने कई किताबें अलग अलग लोगों ने ट्रांसलेट की हैं, पुष्पेश पंत जी ने, बहुत लोगों ने। कैन यू, इज दिस बेटर? सो one thing I always remember about his translations is how he chooses words. एक मेरी किताब थी, उसका किताब का नाम है The Blind Matriarch.
अब ब्लाइंड मेट्रियार्क को कैसे ट्रांसलेट किया जाए बड़ा मुश्किल है समझना, क्योंकि अंधी शब्द ज़रा शोभा नहीं देता है, और मेट्रियार्क का भी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। तो इन्होंने कहा, नमिता जी मैंने एक शब्द सोचा है, वो शब्द था आंधारी। तो ये शब्द जो आंधारी था, उसमें जो गांधारी का बैकग्राउंड था, एक अंधी मेट्रियार्क का था, वो सब उसमें इट वाज प्रेजेंट। तो इसी तरह से उनका काम देख देख के जो मैंने समझा है, इससे एप्ट चाहे अभी दूसरे जनरेशन के लोगों को मिला था इससे पहले, ही इज़ कंपैरेटिवली अ यंगर पर्सन, बट इन टर्म्स ऑफ द quality and the quantity of output, he has distinguished himself as a major translator. And it has been a pleasure to hear him and his wife, his equally distinguished wife. I hope some year we'll give it a little break, I hope. But some year she should also well be deserving of the award. And some year we want to get some Korean writers here and to have her in translation with them. Thank you very much, all of you. Thank you, ma'am. I request Sri Sanjoy Royji to say a few words, and then we proceed towards the ceremony. पहले तो मैं अदिति को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, एंड ऑल्सो टू कंग्रेचुलेट हर। आप सबको शायद पता होगा कि अदिति आई थिंक इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पब्लिशर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। This is no mean feat. The Publishers Guild has always been run by a cranky group of elderly people, and for her to have broken in to this guild is quite remarkable. And Aditi, it's really your energy, the way that you're able to bring everybody together, your inclusivity, and your passion for publishing that has got you where you are. And similarly, the Vani Prakashan Prize for translation and literature that was set up 10 years ago. This is really, in many ways, something that Aditi carries on her shoulder individually and independently. And the way that they've been able to focus on translations is absolutely exceptional. And I think we all need to celebrate this. And as Yatinder said, and Prabhat Ranjan said, that, you know, when you go into the bookstore at Crossford, the fact that there's such an array, जितने सारे लैंग्वेजेस में, हिंदी में किताबें हैं, लोग खरीद रहे हैं, और जो ट्रांसलेशंस है, और ट्रांसलेशंस की महत्वपूर्ण क्या है? It's the only way that we can receive stories from the earth. जो stories है उनके धरती का, उनके जीवन का, of different places, of villages, of the hinterland of India. And for those of us who live in cities and don't necessarily know so many languages, ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम भी जानें, हम भी सीखें कि वहाँ का stories, वहाँ के स्थिति क्या है. It's from this that we will be able to integrate much more. So thank you so much, Aditi, for doing this. Rohini ji, thank you for being here. What you said in terms of you know, the idea of translations, the importance of how do you get words right. It's not about right translation or wrong translation. It's about appropriate translation. And that's amazing. And I hope, as Namita said, in future years, we'll have a large Korean delegation and we'll see some more of your translations here. It's delightful that people like who've received the previous Vani Prakashan Award, including Arunava Sinha, who's now celebrating his 100th translation. I mean, this is really landmark. पिछले साल आप लोग यहाँ पे थे, शांता गोखले जी मराठी में, उनको ये जो लिखते थे मराठी में, उनको ये पुरस्कार मिली. यार आज के दिन में मराठी लैंग्वेज के यहाँ पे काफ़ी हमारी प्रस्तुति हुई है. So thank you so much for that. And finally, to our award winner for the 10th Vani Prakashan Award, Prabhat Ranjan. You know, the work that he's done, and I hope some of you
have access to it is seminal, and we're absolutely delighted that on this occasion of the 10th Vani Prakashan Award, we have with us somebody as legendary as Prabhatji. Thank you so much, and many, many congratulations, Prabhat Ranjan, for this award, much deserved award. मैं बहुत आभारी हूँ सबसे पहले वानी फाउंडेशन का, जिसने इस अनुवाद का ये अवार्ड शुरू किया, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, नमिता जी और संजय रॉय, जिन्होंने ये सोचा अनुवादकों को भी सम्मानित करना चाहिए। ये बहुत बड़ी पीड़ा थी शुरुआती सालों से। जब मैंने 25 साल पहले अनुवाद शुरू किया था तो मुझे एक बात सब कहते थे कि चलो इससे पैसे आ जाते हैं। मुझे ये बात बहुत बुरी लगती थी। हर पैसे तो किताब लिखने से भी आते हैं, अनुवाद को हमेशा वो सम्मानित दर्जा मिले जो अनुवादक भी उतनी ही मेहनत करता है, उतनी मेहनत करता है किसी किताब को अपनी भाषा में लाने में। आज पारोमिता चक्रवर्ती बैठी हुई हैं, उड़िया से हिंदी में अगर अनुदित इनकी किताबें नहीं होती तो कैसे पढ़ते हैं। तो वो सम्मान मिले। और 10 साल पहले जब यह अवार्ड शुरू हुआ था तब मैं यहाँ था जेएलएफ में, मैं उस अवार्ड फंक्शन को देख रहा था और मैंने मन में सोचा था कि शायद मुझे कभी ये मिल सकता है, लेकिन पुरस्कार सोचने से नहीं मिलता है, काम करने से मिलता है। मैं लगातार काम करता जा रहा था और पीछे मेरे तेजी ग्रोवर और रुस्तम सिंह बैठे हुए हैं। रुस्तम सिंह वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अनुवाद की, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद की एक पत्रिका हिंदी लैंग्वेज डिस्कोर्स एंड राइटिंग में मुझे बतौर सहायक संपादक कई साल तक काम करने का अवसर दिया था। बद्री नारायण जी बैठे हैं, ये सब लोग। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे सम्मानित करने में यतीन्द्र मिश्र मेरे साथ बैठे हैं, जिन्होंने मेरी अनुवाद और रचना यात्रा को बहुत शुरू से देखा है। तो मैं सिर्फ विनम्र होकर बहुत आभार प्रकट करता हूँ सभी लोगों का। और ये मैं सोचता हूँ कि अनुवाद के ये काम आगे और नई पीढ़ी में ये काम और बेहतर हो सके, इसके लिए मैं काम कर सकूं। ये अवार्ड मुझे इसी के लिए प्रेरित करने वाला है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रभात जी। पुरस्कार के अंतिम चरण में दो शब्द हमारे फाउंडेशन के फाउंडिंग मेंबर में से एक आदरणीय स्वर्गीय श्री बिमलेंद्र मोहन जी, जो इस साल हमारे बीच नहीं हैं। और बस इतना कहना चाहती हूँ कि 11 वर्ष पहले जब फाउंडेशन की नींव रखी गई तो आदरणीय बिमलेंद्र जी का हमें इतना आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि उनकी वजह से हर वर्ष हम यह पुरस्कार, उनको बस एक चिट्ठी जाती थी फाउंडेशन की ओर से कि सर इस बार का पुरस्कार इस प्रकार जा रहा है, और उनका वेरी गुड जो एक मैसेज आता था वो हमारे लिए बहुत बहुत हौसला देता था। आदरणीय श्री अरुण महेश्वरी जी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए क्योंकि दिल्ली पुस्तक मेला कल रात ही खत्म हुआ। प्रभात जी और अरुण जी की यात्रा लगभग 28 वर्ष पुरानी है, और क्योंकि अब पुरस्कार सेरेमनी अंतिम चरण पे आ गई है तो अब मैं ये बात कह रही हूँ कि ऐसे याराने भी बहुत कम होते हैं प्रभात जी, जो मैंने आपके और अरुण जी के देखे हैं। तो इसका हम पूरी प्रणाली में, पूरी प्रक्रिया में कहीं भी उनका हस्तक्षेप नहीं होता पुरस्कार चयन में। लेकिन जब इस बार प्रभात जी का नाम फाइनल हुआ तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हीं के किसी आत्मीय
को पुरस्कार मिल रहा है, ये उनके लिए पर्सनल विक्ट्री जैसा था। सो थैंक यू सो मच, आप सब इस पुरस्कार सेरेमनी में हमारे साथ आए। और जब भी आप किसी बुक स्टोर में जाएं, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अब वो समय आ गया है कि अनुदित किताबें कहीं पीछे किसी रैक में नहीं रखी होती, अनुवादक और अनुवाद अब फ्रंट में हैं। और ये समय आ गया है कि हम और कहानियों को भी समझें और संस्कृतियों को भी समझें और सबको साथ लेकर चलें, क्योंकि अब नहीं किया तो देश में बहुत समस्या हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।